सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय और सच्चाई में नंबर 1 चैनल द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि आज मतलब 25 जुलाई को साईनाथ रेड्डप्पा जी की बुक लॉन्चिंग का प्रोग्राम था और हमने आप सभी को इनवाइट किया था। आप में से बहुत से लोग हमसे जुड़े थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हमसे उस वक्त जुड़ नहीं पाए, कारण कुछ भी हो सकता है। हम उन कारणों पर न जाते हुए जो प्रोग्राम हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। यदि आपने प्रोग्राम अटेंड किया था तो आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपने प्रोग्राम अटेंड नहीं किया था, किसी कारण से आप अनुपस्थित थे, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो को देखने से आप जान पाएंगे कि जो वेबिनार हुआ था उसमें हमने क्या क्या बातें की थी। हमारे साथ रविशंकर शर्मा जी, डॉक्टर दिलीप जी, वेंकट जी, मिस्टर क्रेग, हार्दिक पारिक जी और बेशक साईनाथ रेड्डप्पा जी भी थे और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था। हम आपको उस प्रोग्राम की कुछ झलकियां आज दिखा रहे हैं, कुछ आने वाले समय में आपको दिखाएंगे, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं उस प्रोग्राम की एक झलक। आप देखिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए, यदि आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए। Good morning to one and all present today, our dignitaries from different parts of India and viewers from all over the world. My name is Hardik Parekh, Director of Falcon Coins Gallery. I would like to tell something about Falcon Coins. We started in the year 1965. The company was started by Sri Manubhai Parekh in an 80 square foot shop and was later joined by Mr. Kirti Parekh in 1970s with a completely new vision between promoting the hobby. Our main motto has always been making numismatics a common man's hobby. The general perception about numismatics is सिर्फ अमीर लोग ही इसको ये हॉबी को स्टार्ट कर सकते हैं, but my father Kirti Parekh's motive has always been that making numismatics a common man's hobby. Everybody should be able to afford it. We opened the largest showroom in India and the only showroom in India in the year 2009. Where people could really visit and see various types of coins which were issued in India. And since 2009, we have been organizing a lot of webinars, seminars, and also approaching a lot of schools and colleges to promote the hobby. So Mr. Kirti Parekh's main intention was to inculcate the hobby at the grassroots level. So we always concentrated on the students who are on higher education, like 8th, 9th, and 10th, and also 11th, 12th. We also concentrated on students who are pursuing history honors or who are doing bachelor's in history. We have really worked in the promotion of the hobby. Mr. Kirti Parekh in the 1970s has been a part of Karnataka Numismatics since then. And he has also been the source of getting some of the really good coins of South India. In the early 70s and 80s, we had a lot of jewelers who were melting coins. He has gone forward and stopped the jewelers and also provided all those coins to the collectors. And we are proud to say that most of the collectors who are authors and experts in South Indian coins have had their origins from Falcon Coins Gallery. Our focus is also profit, but the profit motive is secondary. Our main intention has been always the promotion of hobby. In the year 2009, we started our accessories brand Money Tree, and before which there were no accessories available. If a person had to get accessories, he had to get it probably from Germany or anywhere from outside India. So we started our own accessories brand, and in the year 2019, we also started Falcon Auctions, and Mr. Kirti Parekh has been the inspiration for me as well as a lot of other people, especially for this webinar, and because of which the whole purpose of this webinar is to educate the people who have no knowledge or who has a little bit of knowledge about coins and who want to start their collection. We have various people, various dignitaries who are really expert in their field today. The first speaker for the day is Dr. Dilip Rajgor. I would like to introduce him. Dr. Dilip Rajgor is a leading author and a PhD in numismatics. He has written about 400 books, magazines, journals, and auction catalogs, and also articles in Indian numismatics, history, archaeology, Indiology, and linguistics.
He has launched India's first master degree in Indian numismatics. It's a really a thing that we should be honored about, that we are having Mr. Dilip Rajguru today with us. He has also recently founded the Coinstars channel on YouTube on history and heritage awareness, and also knowledge sharing among the masses. So we are really proud to have you, sir. You can just come, sir. Hello. Yeah. Thank you. Thank you for being with us, sir. Yeah, thanks a lot, Hardik. I'm honored to be here, and I'm really happy that I'm a part of an important book release function today. नमस्कार दोस्तों, आज के वेबिनार के प्रमुख अतिथि श्री रविशंकर शर्मा जी, श्री साईनाथ रेड्डप्पा जी, श्री राजज्ञानी जी, श्री वेंकट नरसिंहन जी, श्री क्रेग फर्नांडिस जी, इस वेबिनार के मुख्य आयोजक कीर्ति पारेख जी, और इस वेबिनार के कोऑर्डिनेटर माय गुड फ्रेंड हार्दिक पारेख जी। दोस्तों, आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम इसलिए इस दिन को महत्वपूर्ण कह रहे हैं कि किसी एक कॉइन की किताब की अगर बुक रिलीज होती है तो ठीक है, होती रहती है, लेकिन अगर उसी किताब की 8वीं एडिशन की एडिशन आती है, अगर 8वें साल में वो नई किताब एडिट होकर बढ़कर आती रहती है, तो इसका पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंट बुक है ये। हजारों लोगों ने इस किताब को देखा है, पढ़ा है, और हर साल इसकी नई एडिशन की डिमांड आती रहती है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हम आज इस किताब के 8वें एडिशन के रिलीज फंक्शन में यहाँ बैठे हैं। तो थैंक यू हार्दिक फॉर इनवाइटिंग मी हियर। दोस्तों, जब हम बात करते हैं इंडियन कॉइन्स की, तो लोगों को यही लगता है कि उसमें आप गुप्ता गोल्ड कॉइन्स की बात करेंगे, उसमें आप मुगल कॉइन्स की बात करेंगे, प्रिंसली स्टेट्स की बात करेंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो ब्रिटिश इंडिया और रिपब्लिक इंडिया को ज्यादा मान देते हैं। यह इसलिए होता है कि लोगों को लगता है कि रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स तो क्या है, चिल्लर कॉइन्स, उनको क्या कलेक्ट करना। और ये भी तो होता है कि लोग कहते हैं कि अगर आप रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, अगर आप ब्रिटिश इंडिया के कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, तो आप छोटे कलेक्टर हैं। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि अगर रिपब्लिक इंडिया के कॉइन्स आप कलेक्ट करते हैं, तो रिपब्लिक इंडिया की भी हिस्ट्री है, वो भी एक मॉडर्न अर्वाचीन हिस्ट्री का एक पार्ट है, तो उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम 2000 साल पुराने सिक्कों की बात करते हैं, तो हमें ये 20 साल पहले के सिक्कों की भी बात करनी चाहिए, क्योंकि ये होता है कि कोई एक कलेक्टर होगा, वो 5000 रुपए का एक कॉइन नहीं खरीद सकता है। ऐसे होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि ये हॉबी हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचे, तो हमें उन कलेक्टर्स को कैटर करना पड़ेगा जो छोटे कलेक्टर्स हैं, जिनका महीने का बजट सिर्फ 500 रुपए है, 200 रुपए का एक कॉइन खरीदते हैं, 50 रुपए का एक कॉइन खरीदते हैं। तो उनके लिए ये जरूरी है कि हम उस ग्रास रूट लेवल तक जाएं और उन्हें हम एजुकेट करें कि आप यह कॉइन्स कलेक्ट करिए, इस तरह आप कॉइन्स कलेक्ट करिए, ये कॉइन्स कलेक्ट करिए, ये कॉइन्स मत कलेक्ट करिए। इसलिए इस तरह की किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब हो जाती है। आज हम मुगल कॉइन्स की बात करेंगे, गुप्ता गोल्ड कॉइन्स की बात करेंगे, तो हम ये नहीं देखते हैं कि यूएस में क्या हो रहा है। यूएस के आज हजारों लाखों कलेक्टर्स हैं, लेकिन वो लोग कोई रोमन कॉइन्स कलेक्ट नहीं करते हैं, वो लोग कोई ब्रिटिश कॉइन्स कलेक्ट नहीं करते हैं। वो लोग कॉइन्स जो कलेक्ट करते हैं, वो वहां के रिपब्लिक के कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। आज उन्हीं के 200 साल के सिक्कों की वहां इतनी बड़ी मार्केट है कि वहां के हर एक शहर में आपको एक कॉइन क्लब मिलेगी, वहां का कॉइन सोसाइटी मिलेगी। तो जब रिपब्लिक अमेरिका के इतने बड़े इंडस्ट्री वहां पर है, तो वहां पर सेम यहाँ पर हम रेप्लिकेट क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर हमारे पास रिपब्लिक इंडिया की भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री होनी चाहिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? इसे हम दो तरह से कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि इस तरह से जो सिक्के आते हैं, उसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। इसके लिए कॉइनस्टार का ये जो यूट्यूब चैनल हमने चालू किया है, ये इसलिए हमने बनाया है कि जो नए कलेक्टर्स हैं, जिन लोगों को थोड़ा भी कॉइन्स में इंटरेस्ट है लेकिन ज्यादा कुछ पता नहीं है,
जिनको किताबों के बारे में पता नहीं है, जिनको कॉइन एग्जीबिशंस के बारे में पता नहीं है, उन तक ये हम इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। इससे ये होगा कि वह कलेक्टर्स इसमें इंटरेस्ट लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो आएंगे और इस तरह की किताबें खरीदेंगे और उसके बाद धीरे धीरे वो बहुत बड़े कलेक्टर बनेंगे। जहां तक मैं अपनी बात करूं तो आज मैंने कुछ किताबें लिखी हैं, कुछ मैगजीन्स लिखी हैं, लेकिन उसकी शुरुआत में आपको शायद पता नहीं होगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया के कॉइन्स हैं, क्योंकि जब मिड 80s में मैं स्कूल में था तब यही कॉइन्स मैं कलेक्ट किया करता था। 1975 का रुपी, 1926 का रुपी, इसी से मेरी शुरुआत हुई है। तो अगर रिपब्लिक इंडिया के कॉइन कलेक्टर्स हैं तो उनको भी आप उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप किसी गोल्ड कॉइन कलेक्टर को देते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा जो काम अब हो रहा है वो साईनाथ रेड्डप्पा जी कर रहे हैं। वह इसकी 8वीं एडिशन से हजारों लाखों लोगों तक पहुंच रहे हैं। वो नए कलेक्टर्स जो आ रहे हैं उनको कैटर कर रहे हैं। इस तरह से ये बहुत ही एक ग्राउंड वर्क लेवल का काम कर रहे हैं। और लास्ट में कॉइनस्टार्स के इस लाइव प्रसारण की जानकारी सारे भारत में लाखों लोगों तक पहुंच पाएगी। इस वजह से इसके काफी बड़े कलेक्टर्स भी बनेंगे, काफी डिमांड भी निकलेगी और काफी सारे हमारे कॉइन्स जो है रिपब्लिक इंडिया के और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया के, पोर्चुगीज इंडिया के, उसके कलेक्टर्स भी बढ़ेंगे। Friends, I congratulate Sri Sainath Redappa for this 8th edition of his latest and most popular book on British India and Republic India. Redappa ji, you are doing a great work. Please Thanks a lot, accept my sir. heartiest congratulations for the same. That's my I pleasure. also It's my thank, honor. yeah, it's really a good work you are doing. I must appreciate that. Thank you, sir. And I also thank Sri Kirti Parekh and his dashing son Hardik for organizing this event and sponsoring this event and bringing out this beautiful book on these Republic of India coins. Thank you, Hardik. Thank you, friends, for all your time and attention. Thank you. आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत व ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।